کے ساتھ احترام کے ساتھ ہم مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری مدثر العلی سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو سے گویا کہ ایک بات یہ کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں عاجزانہ مؤدبانہ کہ آپ آخر تک مفتی صاحب کا بیان سنیں اور اس کے بعد میں یہاں سے کچھ لے کے جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں۔ انشاءاللہ بہت مختصر سا خطاب ہوگا اور بہت ہی قیمتی اور ضروری خطاب ہوگا، معلومات سے بھرپور، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب بھی دعا فرمائیں گے، اس کے بعد میں اس کا اختتام ہوگا۔ ابھی بچے کو جو ہے بچوں کو انعام بھی تقسیم کیا جانا ہے، وہ بھی ہوگا، اس کے بعد میں انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين۔ وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه أحمد۔ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، رواه ابن ماجه۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تبرك بالقرآن إنه كلام الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا ہے، 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ، اس میں کلام درج ہے: واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال کہتا ہے
وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ آمین کہہ دیجیے۔ آمین ایک مستقل دعا ہے، جہاں موقع ملا کرے آپ آمین کہہ کر دعا مانگ لیا کریں۔ بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں آمین مستقل دعا ہے، جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آمین کہہ کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگ لیا کرو۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے آمین۔ اب لگ رہا ہے آپ زندہ ہیں، زندہ قوم کو بولنا پڑتا ہے تاکہ نظر آئے دوسری قوم کو کہ ہاں ہم زندہ ہیں۔ آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اے رب ذوالجلال پڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے، پڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کریم کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین امالی گنج میں پہلی مرتبہ حاضری تشرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کے اولین داعی حافظ محمد سین سلمہ اللہ تعالی عز و جل حضرت مولانا محمد تنویر احمد صاحب دامت ظلہ، اللہ رب العالمین علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وقت حالانکہ بہت کافی ہو چکا ہے، 12:15 سے زائد وقت 12:30 ہونے کو ہے، یہ وقت بستر پر جانے کا ہے، سونے کا ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات کے درمیان حاضر آیا تھوڑی دیر رب العالمین کی بات کے فضل کرم سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس زبان سے حق بات نکالنے کی اور آپ کے کانوں کو حق بات سننے کی، اور سب سے بڑی بات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بڑی کثیر تعداد میں پردے سے سن رہی ہیں، رب العالمین ان کا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے ابھی دیکھا یہ پررونق منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا، حضرت مولانا تنویر احمد صاحب کو عالمیت کی دستار عطا فرمائی گئی، تو یہاں 4 ایسے نوجوان ایسے نونہال ہیں جن کی عمر پورے طور پر 10 اور 20 کے درمیان کی ہے، کوئی ان میں سے 12 سال کا ہوگا، کوئی 15 سال کا ہوگا، کوئی پورے طور پر 18 سال کا ہوگا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے اللہ کا قرآن پورا کا پورا یاد کر لیا ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک ان کے سینوں میں رب کا قرآن محفوظ ہو چکا ہے، ان کو قرآن مقدس کا ایک ایک الف یاد ہو چکا ہے، ایک ایک زبر یاد ہو چکی ہے، ایک ایک زیر یاد ہو چکی ہے۔ یہ آج فخر سے اپنا سینہ چوڑا محسوس کر رہے ہوں گے، ان کے والدین بھی فخر محسوس کر رہے ہوں گے، ان کی ماں کا بھی فخر سے سر اونچا ہو رہا ہوگا، ان کی بہنیں بھی دل ہی دل میں خوشیاں منا رہی ہوں گی، ان کی بھانجیاں بھی کہہ رہی ہوں گی آج میرا ماما حافظ قرآن ہو چکا ہے، ان کی ماں کہہ رہی ہوگی آج میرا لال حافظ قرآن ہو چکا ہے، ان کا بیٹا ان کا پورے طور پر والد کہہ رہا ہوگا آج ہمارا دلارا پورے طور پر حافظ قرآن ہو چکا ہے۔ ہاں اس والد کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہوتا ہے جو اپنے حافظ بیٹے کے پیچھے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے۔ اس وقت ہر والد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہوتا، وہ میرا امام ہوتا، میں اس کا مقتدی ہوتا، وہ قرآن سناتا چلا جاتا، میں قرآن سنتا چلا جاتا۔ ہاں یہ صرف انہی کو مبارکباد دینے کی
बात नहीं है। इनके वालिदैन ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनकी बहनें भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कौन माँ चाहती है उसका बेटा उससे दूर रहे, कौन बाप चाहता है उसका लाल उससे दूर रहे, कौन बहन चाहती है उसका भाई उससे दूर रहे। जिला सीतापुर रेवसा यहाँ से पूरे तौर पर तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर से ये बच्चे अपना घर छोड़े हुए, अपने घर के नरम बिस्तरों को छोड़ करके हमारी अयोध्या की सरजमीन पर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। इनके घरों में आशाइश मौजूद है, घरों में अच्छे कपड़े मौजूद हैं, घरों में अपनी प्लेटें नहीं धुलते, मदरसों में अपनी प्लेटें धुल रहे हैं, अपने कपड़े खुद धुल रहे हैं, अपने कमरे की सफाई खुद कर रहे हैं। सुबह को उठते हैं अल्लाह का कुरान आंखों के सामने होता है, शाम के वक्त अल्लाह का कुरान आंखों के सामने होता है। जिस दिन इन्हें सबक याद नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, हमारे अपने बच्चे दिन में 3 मरतबा बेहतरीन किस्म का खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं। ये बेचारे सुबह उठते हैं अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, फिर सूखी जो कुछ मिल जाती है फिर खा करके पढ़ने बैठ जाते हैं। ये इनकी जिंदगी है, ये मिंबरों की बरकत है, मेहराब की बरकत है, चटाई की बरकत है, ये मदरसों की बरकत है। हाँ, आज इस बरकत का ये फल आप हज़रात देख रहे हैं कि रब्बुल आलमीन ने इनके सीनों में पूरा कुरान महफूज कर दिया। रहते दुनिया तक पूरे तौर पर यह कुरान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम को नहीं मिटा सकती। इस वक्त सारे आलम में, क्यों हिंदुस्तान की बात करूं, मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी रहते हैं, सारे आलम में रहते हैं। हमारा नबी आलमी नबी है, हमारी किताब आलमी किताब है, यह उम्मत आलमी उम्मत है, सारे आलम के लिए है ना। कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास, तुम सारी इंसानियत के लिए निकाले गए। तअमुरुना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से लोगों को मना करते हो। सारी दुनिया में एक ही आवाज़ उठ रही है, एक ही आवाज़ आ रही है, किसी भी तरीके से इस्लाम को कमज़ोर किया जाए। मैं आपको बताऊं, इजराइल आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, अब तो सारे जान गए हैं। इजराइल किसे कहते हैं? इजराइल की राजधानी तेल अवीव, फ्रांस की राजधानी पेरिस, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, इन 3 जगहों पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जिनमें दुनियाई यहूद के बड़े बड़े पादरी शामिल हुए। उसका उन्वान क्या था? उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान ये था, इस्लाम को कैसे कमज़ोर किया जाए, इस पर गौर फिक्र। सारे दुनिया के यहूदियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर से ये फैसला दिया, अगर तुम इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते हो, मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हो, तो एक काम करो, अवाम का ताल्लुक इन उलमा से काट दो। अपने बच्चों को मदरसों में न भेजो, अपने बच्चों को कुरान न पढ़ाओ, इस्लाम अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। इस साजिश का शिकार नहीं होना है। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। वो कुरान मिटाने की ख्वाब देखते हैं। कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है, दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम को नहीं मिटा सकती। दुनिया में इस वक्त there is 1019 रिलीजन इन ऑल वर्ल्ड। दुनिया में इस वक्त कमोबेश 1019 मज़ाहिब हैं। हर मज़हब के पास अपनी धार्मिक किताब है, हाँ पूरे तौर पर, लेकिन कोई भी मज़हब का मज़हबी आदमी अपने धार्मिक ग्रंथ का हाफिज नहीं है। 19 प्रकार की रामायणें हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जिनमें से सबसे मशहूर मारूफ पूरे तौर पर वाल्मीकि की रामायण है। कोई आपको हाफिज ना मिलेगा। 24,000 चौपाइयाँ जो
वाल्मीकि की रामायण में है उनमें से 20,000 आपको पुरतौर पर कोई पंडित सुना ना पाएगा। ऋग्वेद का हाफिज कोई ना मिलेगा, यजुर्वेद का हाफिज कोई ना मिलेगा, अथर्ववेद का हाफिज कोई ना मिलेगा, सामवेद का हाफिज कोई ना मिलेगा, कल्कि पुराण का हाफिज कोई ना मिलेगा, भविष्य पुराण का हाफिज कोई ना मिलेगा, गरुड़ पुराण का हाफिज कोई ना मिलेगा, गौतम बुद्ध की किताब दीघ निकाय का कोई हाफिज बुद्धिस्ट ना मिलेगा। वर्तमान महावीर को मानने वाले हमारे जैनी भाई हैं, इनकी धार्मिक ग्रंथ का नाम और रूपांक है। कोई जैनी भाई अपनी मजहबी किताब का हाफिज नहीं है। आज दुनिया से कुरान को मिटाने का ख्वाब देखने वालों, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आओ तुम हमारे मदरसों में आकर के देखो, हम 10 साल का बच्चा हाफिज दिखाएंगे, 15 साल का बच्चा हाफिज दिखाएंगे, 20 साल का जवान भी हाफिज दिखाएंगे, 25 साल का नौजवान भी हाफिज दिखाएंगे, और इससे बड़ी बात 60 साल का हाफिज भी हम तुम्हें दिखाएंगे, जिसके सीनों में रब्बुल आलमीन ने कुरान को महफूज कर दिया है। तुम कुरान नहीं मिटा सकते, तुम इस्लाम नहीं मिटा सकते, तुम इस्लाम नहीं मिटा सकते। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटेगा? नहीं मिटेगा। देखो इनको एक ही कुरान करीम की ज़बर याद हो गई। इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी आप अंदाज़ा लगाएं। मैं आपसे कहूँ, आप ये एक छोटी सी आयत है जनाब, इसको 2 घंटे का वक्त है, आप इसे याद करके सुना दीजिएगा। आप सुना ना पाएंगे। सोचो इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। ये कुरान ऐसे याद हो जाता है? कितनी रातें लगाई होंगी इन्होंने, कितने दिन खपाए होंगे इन्होंने। अपने आप को कुरान करीम में खपा दिया, तब जाकर के अल्लाह ताला ने इनको ये दौलत अता फरमाई। ये सिर्फ हाफिज नहीं है जो आपको 4 पूरे तौर पर चमचमाते चेहरे नजर आ रहे हैं। ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का मामा है, किसी का पोता है, किसी का नवासा है। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुमने अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। उलमाए कराम इसकी तशरीह में फरमाते हैं, सिर्फ कुरान सीखने वाला ही सबसे अच्छा नहीं, कुरान सिखाने वाला ही सबसे अच्छा नहीं, इन बच्चों पर खर्च करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन मदरसों में चंदे देने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए कपड़ों के इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों की रोटी का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए छत का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को हदिया और तोहफे देने वाला भी सबसे अच्छा है। जो भी इन बच्चों का कुरान हिफ्ज़ करने में किसी एतबार से मदद करते हैं, ये सब के सब खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा बिदाखिल, सब अल्लाह के बेटे। इनका इकराम करो, इनको इज्जत की निगाह से देखो। हाफिज हाय हाय हाय, अभी तो एक ताज इनको यहाँ पहनाया गया। अल्लाह के यहाँ कितना इकराम होगा। यहाँ तो आप ये माले पहना रहे हैं, हार पहना रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं। अल्लाह के यहाँ सोचो इनका क्या इकराम किया जाएगा, इनका क्या किया जाएगा, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। इनके वालिदैन का क्या किया जाएगा, उनका थोड़ा सा बता देता हूँ। हदीस पाक में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद के अंदर ये रवायत मिल गई, मुस्नद अहमद में ये रवायत मौजूद है, मुस्नद अबी याला में ये रवायत मौजूद है, मुस्नद फिरदौस में ये रवायत मौजूद है। तारीख जुर्जान इब्न हिशाम ने इसको अपनी तारीख की पूरे तौर पर अवराक में जगह दी। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान महशर वाले दिन कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, उन्हें बेहतरीन किस्म का लिबास पहनाया जाएगा, फिर उनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, अल्लाह के अर्श के नीचे उनका मिंबर लगा दिया जाएगा, उनके सर पर एक चमचमाता हुआ ताज रख दिया जाएगा। लोग कहेंगे, अल्लाह ये किस उम्मत के नबी हैं? आवाज आएगी, उम्मत के नबी नहीं है, ये मेरे नबी के वो उम्मती हैं जिन्होंने अपने लाडलों को कुरान का हाफिज बनाया था, जिन्होंने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया था, जिन्होंने अपने पोते को कुरान का हाफिज बनाया था, जिन्होंने अपने भाई को कुरान का हाफिज बनाया था, जिन्होंने अपने भतीजे को कुरान का हाफिज बनाया था। इस कुरान करीम की इकराम में रब्बुल आलमीन इनके घर वालों को पूरे तौर पर, इनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा
पहनाएगा, जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी मान पर पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। सोचो तो सही, जब हाफिज़े कुरान के वालिदैन को अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है तो खुद जिसने हिफ्ज़ किया हो उसको कितनी इज्जत देगा मैदान में शर्म। इसका अंदाजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लोगों, हाफिज़ कुरान की इज्जत किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कतीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अभी रमज़ान आ रहा है, देखना, हाय हाय हाय, काश उस वक्त दिल मचलता है, काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता, कुरान पढ़ता। इतने हाफिज हो गए, इंशाअल्लाह इनके वालिदैन के लिए बख्शिश का सामान हो गया। घर वाले, खानदान वाले, बरादरी वाले, बस्ती वाले, तमाम के तमाम रिश्तेदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप उलमा से एक हदीस सुनते हैं, एक हाफिज कितने लोगों को अपने साथ जन्नत में ले जाएगा? जी 10। आप, ये मशहूर हदीस है, मशहूर हदीस है, आप सुनते चले हैं। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, मिशकात शरह मिरकात में मुल्ला क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इसको खुसूसियत के साथ जगह दी। एक हदीस मैंने पढ़ी, एक किताब है इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सयूती की किताब अद्दुर्रुल मुंतशिरा फी अहादीसिल मुस्तहबिरा, दूसरी किताब है अल-बुदूरुस साफिरती फी उमूरिल आखिरा। इन दोनों में एक रवायत लेकर के आए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया और वो हामिल कुरान बन गया और आबिद कुरान बन गया, यानी कुरान करीम के हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, उस पर अमल करता रहा, ऐसा बंदा मैदान में महशर वाले दिन अपने खानदान के 400 अफराद को अपने साथ जन्नत में लेके जाए। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से जरा सुभान अल्लाह। 400। एक रवायत, एक किताब है लुक़्तुल मरजान फी अहकामिल जान, इमाम जलाल सयूती की अरबी जुबान में है। उसमें एक बड़ा मजेदार के तौर पर, एक लतीफ़े के तौर पर एक हदीस निकल की गई। मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, हाफिज बच्चा जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, इसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, तूने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, इसकी सआदत में हम तुझे जन्नत अता फरमाते हैं, तो ये जन्नत में नहीं जाएगा, खड़ा हो जाएगा। रब्बुल आलमीन के फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों से, मेरे इस बंदे से पूछो जन्नत में क्यों नहीं जा रहा है। तो ये फरिश्ते करीब आएंगे और इस हाफिज से कहेंगे, आपके लिए तो जन्नत का परवाना मिल चुका, आप जन्नत में जाइए ना। तो कहेगा, नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? आ जाओ, अल्लाह से कहो ना, अब मेरा अल्लाह तो सुन ही रहा है। हाँ, मेरे अल्लाह से कहो, अभी मेरा चाचा जन्नत में नहीं गया, मैं कैसे चला जाऊँ? अभी मेरा मामा जन्नत में नहीं गया, मैं कैसे चला जाऊँ? अभी मेरे वालिद जन्नत में नहीं गए, मैं कैसे चला जाऊँ? अभी मेरी माँ जन्नत में नहीं गई, कैसे चला जाऊँ? अभी मेरा भतीजा जन्नत में नहीं गया, अभी मेरा फला खानदान वाला जन्नत में नहीं गया, मैं कैसे चला जाऊँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, वो तो बगैर अपने खानदान वालों को, रिश्तेदारों को लिए जाने को तैयार ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये मेरा बड़ा लाडला बंदा है, इसने रातों को जाकर मेरा कुरान याद किया है। हाँ, इसने दुनिया में मुझे राजी किया, आज मैं इसे राजी करता हूँ। जाओ जिसको कहता है सबको इसके साथ लेकर के जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे लिए एक जरिए आखिरत है, इनकी खिदमत करो, इनकी मदद करो। ये तो एक हो गया हाफिज का। आलिम का भी तो बता दूँ, इनका कोई नहीं बताता। मोहतरम साहब ने सारे हाफिज दिया, आलिम का कोई मर्तबा नहीं। हाँ, सुन लो, आलिम का भी सुन लो। मैं तिरमिज़ी से बताता हूँ, अल्लाह के शुक्र को कच्ची बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तिरमिज़ी शरीफ में एक रवायत है, हाफिज एक रवायत 10 आदमी को और मुत्तफ़क़ुन अलैहि इस पर, और एक रवायत 400। जो 400 वाली रवायत है, इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन बाब फ़ज़ाइल में इन रवायतों को शामिल किया जाता है। इमाम जलाल सयूती ने फरमाया है, क़ादिल हदीस हसन सहीह। बहरहाल आलिम के बारे में फरमाया, एक आलिम, अल्लाह अकबर, एक आलिम खानदान में अगर हो जाए, सारे खानदान की निजात का जरिया है। मैदान महशर वाले दिन अब ये आलिम बन गए, ये हाफिज बन गए, ये पढ़ाएंगे, ये आपको मसाइल बताएंगे,
मिंबर पर खड़े होंगे और आपको मसले समझाएंगे। देखो नमाज के मसले हैं, रोजे के मसले हैं, ज़कात के मसले हैं, सदका खैरात के मसले हैं, इखलाक ऐसा बनाओ, किरदार ऐसा बनाओ, वरासत के मसले हैं। ये बताएंगे ना? अरे बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे इंशाअल्लाह, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो ये आपके कौन हो गए? अगर ये आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपके कौन हो गए? अरे उस्ताद हो गए कि नहीं हो गए? आप इनके शागिर्द हो गए। हाँ सुनो, अब समझ में आएगी हदीस। प्यारे आका ने फरमाया मैदान महशर वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजियों को जन्नत अता फरमा देगा, नमाजियों को जन्नत अता फरमा देगा, हाफिजों को 10 को लेके जाओ, 400 लोग लेके जाओ, जन्नत अता फरमा देगा। शहीदों को फरमाया 100 को साथ में लेके जाओ, जन्नत अता फरमा देगा। ज़कात देने वालों को जन्नत अता फरमा देगा। तमाम नेक लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन इन आलिमों को खड़ा कर देगा, इनको जन्नत में ले जाने देगा। उस्ताद को खड़ा कर देगा। ये कहेंगे अल्लाह जिन्होंने मुझसे पढ़ा वो तो जन्नत में चले गए, मुझे क्यों रोक दिया गया? रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे, तुझसे पढ़ने वाला, तुझसे सीखने वाला, तुझसे मसाइल मालूम करने वाला तेरा एक चहीता, तेरा एक शागिर्द अभी अपनी गलतकारियों की वजह से जहन्नम के नीचे तह में पड़ा हुआ है। जब तक वो उसको तू अब सिफारिश करके अपने साथ जन्नत में नहीं ले जाता, तुझे जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं है। हदीस पाक में है उलमा तमाम के तमाम लोगों की सिफारिश करेंगे। आते अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया उस्ताद किसे कहते हैं, शागिर्द किसे कहते हैं? आते अली फरमाने लगे अगर कोई शख्स मुझे एक अलिफ सिखा दे वो मेरा उस्ताद बन गया, मैं उसका शागिर्द बन गया। और हदीस में है ऐसे तमाम उलमा अपने से तमाम जानकारी मालूम हासिल करने वालों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इनकी हम कदर करें, इनको मोहब्बत की निगाह से देखें। रमजान आ रहा है, तैयार है आप सब? कितने लोग तैयार हैं रमजान के लिए? सारे लोग तैयार हैं? अच्छा, काहे के लिए? अफ्तारी खाने के लिए, रोजा रखने के लिए ना? हाँ, रोजा रखने के लिए तैयार है। तरावियों के लिए तैयार हैं? तरावी के लिए कितने लोग तैयार हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितनी रकअत पढ़ेंगे आप जी? 8 वाले तो नहीं हो, 20 पढ़ेंगे। इज्मा सहाबती अला अन्न तरावीह 20 रकअत व 3 वित्र। इज्मा नकल फरमाया मुल्ला अली कारी ने मिशकात की शरह मिरकात में। सहाबा का इज्मा इस बात पर है तरावी 20 रकअत है 3 वित्र के अलावा। तरावी पर क्या मिलेगा? तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां। सुभान अल्लाह। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। हाँ, कितनी? एक सजदे पर 1500 नेकियां। और कितने सजदे होते हैं भाई तरावी में? कितनी रकअत? 20 को 20 दूनी 40 सजदे हो गए। अब 40 को 15 से जरा ज़रब दो, गुणा करो, कितना आ जाएगा? 15 चक्को 60। और 60 के आगे पूरे पर 0 लगाओ 3, कितना बन जाएगा? 60,000 बन जाएगा माशाल्लाह। यानी एक दिन की तरावीह पर 60,000 नेकियां। सुभान अल्लाह। ये तो मिलेगा एक तरावीह 60,000 नेकियां। और क्या मिलेगा? जन्नत में एक महल। उसको महल कितना बड़ा है ये तो नहीं बताऊंगा, दरवाजा कितना बड़ा है ये बता देता हूँ। इस दरवाजे से इस दरवाजे के इस कोने से उस कोने तक जाना चाहोगे तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे। सोचो दरवाजा इतना बड़ा है तो महल कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह। और क्या मिलेगा? उसके सामने एक बाग मिलेगा, दरख्त मिलेगा। दरख्त कितना बड़ा है? तिरमिज़ी में आते अनस फरमाते हैं इल्ला वसूकुहा मिन ज़हब, कोई दरख्त ऐसा है ही नहीं जिसका तना सोने का ना हो। और इतना बड़ा दरख्त है कि उसके नीचे उसके साये में 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। सोचो तो सही, ये तरावीह के सजदे पर रब्बुल आलमीन अता फरमा रहा है। तरावीह पढ़ने वालों को, माओ को, बहनों को, बेटियों को, सबको ये अता फरमाएगा। आप फर्दन पढ़िए, तन्हा पढ़िए, आप प्रॉपर घर के अंदर पढ़िए, अलम करके से पढ़िए। 20 सूरतें याद है एक सूरत में, एक सूरत एक रकअत में पढ़िए। 20 रकअतों में 20 सूरतें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। और अगर 20 सूरतें आपको नहीं याद है, 10 ही याद है, आप प्रॉपर पलट के पढ़िए। आप तरावीह जरूर पढ़िए। हाँ, तरावीह के बाद फिर 3 वित्र पढ़िए। आपको तो डबल
अजर मिलता है। सहरी बनाने का अलग से आपको अजर, इफ्तारी बनाने का अलग से आपको अजर, हाँ, घर में झाड़ू लगाने का अलग से आपको अजर, बर्तन धुलने का अलग से आपको अजर। देखो मत हजरात तो खा के चले जाते हैं, हाँ, बर्तन धुलना आपके हिस्से में आता है। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, आप परेशान ना हुआ करो। हर अमल पर अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा इंशाअल्लाह, नेकियां अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे आका ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी का रोजा इफ्तार करा दिया या इफ्तार कराने में जरिया बना, अल्लाह उसको इतना सवाब देता है गोया उसने एक रोजा और रख लिया। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, बच्चियों, तुम कितनी मुबारक हो, रोजाना अपने लिए भी इफ्तार बनाती हो, अपने घर वालों के लिए भी बनाती हो, अपने भाई के लिए भी बनाती हो, अपनी माँ के लिए भी बनाती हो, अपने शौहर के लिए भी बनाती हो, अपने भतीजे के लिए भी बनाती हो। सोचो तो सही, अगर 10 लोगों की इफ्तार का इंतजाम आपने किया तो गोया 10 रोजा पूरे पाँव पर और आपने रख लिए, कितना सवाब आपके हिस्से में आएगा, आपके हिस्से में ढेरों सवाब आएगा। हाँ, हमारे भाई भी पीछे थोड़े ही हैं, पर ये भी तो इंतजाम करते हैं, राशन न लाएं, अगर पकौड़ी के लिए बेसन न लाएं, रिफाइंड तेल न लाएं, मसाले न लाएं तो घर में कैसे बनेगा। आप भी बराबर के शरीक है, खूब खाओ, खूब पियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाता है रमजान में। रमा का यार मौजू, रमा का माना क्या, रमजान का माना क्या, रमा का यार मौजू, जला देना, खाक कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। अल-मुनजिह अरबी जुबान की मशहूर मारूफ लुगत है, उसके अंदर रमजान के तकरीबन 18 माने दर्ज है, उनमें से एक है जलाकर राख कर देना। क्या माना, जिस तरीके से आग लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही रोजा बंदे मोमिन के गुनाहों को जलाकर राख कर दिया करता है। रखेंगे इंशाअल्लाह रोजा। हाँ, अल्लाह रोजा रखने वालों को बड़ा इनाम देता है, बड़ा नवाजता है। अभी देखना चांद नजर, अभी 18 को इंशाअल्लाह तरावियां शुरू होंगी, 18 ही को शुरू हो, क्योंकि 17 को हमारा प्रोग्राम है। लोगों ने आखिरी दिन भी हमें नहीं बख्शा है, कहा आप आ जाइएगा। मैंने कहा अगर तरावी शुरू होगी तो लेकिन फिर मत आइएगा, आप आ जाइएगा अगर 18 को। हाँ, बड़ी इम्कान ये है क्योंकि 18 तारीख को चांद तकरीबन 10 से 11 डिग्री पे है और 10 डिग्री पर चांद आसानी से नज़र आता है। माहिर फलकियात मौलाना समीउद्दीन अल-कासमी दामदुल्लाह उनकी यही तहकीक है। बहरहाल मैं आज कर रहा था, अभी देखना 18 तारीख से पहले कितने लोगों का शुगर लो होगा, अभी देखना कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अभी देखना कितने लोग डॉक्टर को चेकअप कराएंगे, डॉक्टर साहब चक्कर बहुत आ रहे हैं, देख लो कहीं शुगर तो लो। अब एक कमीने 11 महीने खा के चंगा हुआ तो 1 महीने में मर जाएगा क्या। जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए उसे चाहिए वो रोजा रख ही ले, क्योंकि सैयदना अली फरमाते हैं जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया फिर उसके बदले सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, उतना सवाब नहीं मिल पाएगा जितना रमजान के एक रोजे का है। इरादा करो इंशाअल्लाह मुकम्मल रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरावी पढ़ेंगे 10 दिन। इरादा करो, वादा करो इंशाअल्लाह 10 दिन में कुरान पढ़ के घर में बैठ जाएंगे। ठीक है, 10 दिन बहुत, जिस दिन कुरान मुकम्मल कहते हैं हमारी तो तरावी मुकम्मल हो गई। बेवकूफ, तरावी कहाँ मुकम्मल हुई? तरावी तो पूरे तौर पर जब तक रमजान का शव्वाल का चांद नजर ना आ जाए तब तक रहेगी। अभी तेरी फिर कुरान मुकम्मल हुई है, याद रखिएगा। सारा रमजान तरावी पढ़ना ये मुस्तकिल अलग सुन्नत है, और सारे रमजान में तरावी का खत्म करना ये अलग सुन्नत है। एक सुन्नत पर अमल हुई, दूसरी सुन्नत तो भी बाकी है। अब पता नहीं अगले साल ही हमें मौका मिले कि ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा है? नौजवानों, क्या नौजवान नहीं जा रहे हैं? क्या जवानों को मौत नहीं आ रही?
कोई जरूरी नहीं कि हम बूढ़े होकर के मरे। अल्लाह ने पैदाइश में तरतीब रखी है, इंतकाल में कोई तरतीब नहीं रखी है। पैदाइश में तरतीब है, पहले दादा आएगा, फिर बेटा पर वालिद आएगा, फिर पोता होगा, बेटा होगा, फिर पोता होगा। ये तरतीब पैदाइश की है, इंतकाल की कोई तरतीब नहीं है। मैंने इन गुनहगार आंखों से कई मरतबा जवान बेटों की लाशों को पूरे बाप के कांधों पर जाते हुए इन आंखों से देखा हुआ है। अभी देखो, अखबारात उठा के देखो, जवान भी जा रहे हैं, नौजवान भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चियां भी जा रही हैं, माएँ भी जा रही हैं, बहनें भी जा रही हैं, बेटियां भी जा रही हैं। कोई जरूरी नहीं, लिहाजा इस मौके को बुरी मत जानो। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका अता फरमाया, इस साल आप मुकम्मल रोजे रखने का इरादा करो, मुकम्मल तरावीह पढ़ने का इरादा करो। हाँ हाँ, पिछला साल तरावीह और रमजान, मुझे जहाँ तक याद है तो IPL लेके चला गया था तरावीह को, और इस बार वर्ल्ड कप कम वक्त लेके जाएगा। 20 वर्ल्ड कप आ रहा है। आप हजरात सब जितने नौजवान हैं देखो, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब जानते हैं कितना आप पूरे तौर पर आशिक हैं क्रिकेट के। IPL के बारे में एक एक प्लेयर का नाम आपको अजबर है, कब किसने सेंचुरी मारी, कब किसने पूरे तौर पर कितने विकेट लिए, कब कौन रन आउट हुआ, कब पूरे तौर पर कौन कैच आउट हुआ, आपको सब पता है। नहीं पता तो शरीयत के बारे में नहीं पता, नहीं पता तो कुरान के बारे में नहीं पता, नहीं पता तो इस्लाम के बारे में नहीं पता, नहीं पता तो ईमान के बारे में नहीं पता, नहीं पता तो कुरान के बारे में नहीं पता। हाँ, कुरान में हो मर्द मुसलमान, इकबाल कहता है कुरान में हो मर्द मुसलमान। कुरान से अपने आप के ताल्लुक को मजबूत करो, कुरान आपको इज्जत फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये इज्जत वाला कलाम है। तबर्रक बिल कुरान इन्नहु कलामुल्लाह फइन्नहु कलामुल्लाह। प्यारे आप फरमाते हैं ये अल्लाह का कुरान बरकत वाला है, इसको पढ़कर बरकतें हासिल किया इंशाअल्लाह। तो रमजान आ रहा है, सब तैयार रहो। अल्लाह ताला रोजेदारों को 2 खुशियां नसीब फरमाता है। बहुत ज्यादा देर आप थक गए हैं? कितने लोग थक गए हाथ उठा दे जरा। अच्छा माशाल्लाह, कोई नहीं थक गए, थकेंगे कैसे बोल मैं रहा हूँ, थकेंगे आप, बड़े इंसाफ पसंद है माशाल्लाह। बस थोड़ी देर और आपके दरमियान 2 खुशियां अल्लाह ताला रोजेदारों को अता फरमाता है। पहले एक हदीस सुनो, बुखारी शरीफ की रवायत, प्यारे आका अबू हुरैरा रावी, प्यारे आका फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई बंदा मोमिन अपने अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ताम्मा पर भरोसा करते हुए हलाल रिज़्क़ से रोज़ा सहरी करे और हलाल रोज़ी से रोज़ा इफ्तार करे और अपने आँख का भी रोज़ा रखे, अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रखे, अपने हाथों का भी रोज़ा रखे, अपने पैर का भी रोज़ा रखे, अपने कान का भी रोज़ा रखे, दिल और दिमाग का भी रोज़ा रखे। उलमा इकराम फरमाते हैं हाथ से रोज़ा रखने का मतलब है इन हाथों से रोज़े की हालत में कोई गलत काम न करे। पैरों से रोज़ा रखने का मतलब यह है पैरों से गलत काम की तरफ चल करके न जाए। आँख से रोज़ा रखने का मतलब यह है इन आँखों से कोई नाजायज़ चीज़ रोज़े की हालत में न देखे। कान से रोज़ा रखने का मतलब यह है इन कानों से किसी की ग़ीबत न सुने, कानों से किसी का ताना न सुने, किसी की गाली न सुने, गाने न सुने, कोई बुरी बात न सुने, कोई बुरी बात न सुने। जुबान से रोज़ा रखने का मतलब यह है जुबान से कोई गलत बात न निकाले, ग़ीबत न करे, चुगली न खाए, ताना न दे, गाली न दे। ला तशद्दन अहदा वला ताकिरन मिनल मारूफ शैआ वइन तुकल्लिम अखाका वअंत मुनबसितुन इलैहि वजहा इन ज़ालिका मिनल मारूफ रवाहु अबू दाऊद। प्यारे आका फरमाते हैं जुबान से किसी को पूरे तौर पर गाली न दे। लैसल मुमिन बित्ताआन वला बिल्लाआन वाल फाहिश वाल बदी। मुसलमान की शान नहीं किसी को ताना दे, किसी को बुरा कहे। शिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। मुसलमान को गाली देना फिस्क है, उसको कत्ल करना कुफ्र है। जुबान से रोज़ा रखने का मतलब है इस जुबान से किसी की ग़ीबत भी न करे, किसी की चुगली भी न करे, किसी को ताने भी न दे, किसी को गाली भी न दे, कोई बुरी बात जुबान से न निकाले। प्यारे
आका फरमाते हैं अगर कोई बंदा या बंदी मेरा उम्मती मर्द या औरत अगर इस तरीके से रोजा रखेगा तो प्यारे आका का ऐलान है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह। हम यही करें इंशाअल्लाह, रोजे की हालत में हम गुनाहों से अपने आप को बचाए रखें, खास अल्लाह ताला की इबादत करें, तिलावत में वक्त ज़्यादा लगाएं, हर नमाज के बाद एक पारा पढ़ लें। हर नमाज के बाद कितनी नमाजें हैं दिन में? अमानीगंज वालों कितनी हैं? 5 है माशाल्लाह, बोला करो। हमारी कौम का मसला यही है, जब कहा जाए बोलो तो खामोश रहती है, और जब कहा जाए खामोश रहो तो खूब बोलती है। जुमे वाले दिन इमाम साहब जब खुतबे के लिए मिंबर पर आए तो मसला ये है ला सलाता वला कलाम, फतवा तारखानी इब्न हिशाम सब में यही फतवा दर्ज है, उस वक्त न बात करना दुरुस्त है न कोई नमाज पढ़ना जायज़ है। वहाँ पर हमारे नौजवान खूब बात करते हैं, खूब खेती बाड़ी की बातें, अपनी बिजनेस की बातें, सारी दुनिया भर की बातें। मस्जिद के सुकून की जगह मस्जिद ही है, यही सब कुछ हो पाता है। वहाँ खामोश रहने का हुक्म है, वहाँ हम खूब बातें करते हैं। और यहाँ मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तो आवाज़ मुँह से नहीं निकलती। अरे खूब बोला करो। प्यारे आका फरमाते हैं कुल्लु तस्बीहतिन सदका, कुल्लु तहलीलतिन सदका, कुल्लु तकबीरतिन सदका, कुल्लु तहमीदतिन सदका। हर सुभान अल्लाह पर अल्लाह सदके का सवाब देता है, हर अल्हम्दुलिल्लाह पर अल्लाह सदके का सवाब देता है, हर अल्लाहु अकबर पर अल्लाह सदके का सवाब देता है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पर अल्लाह सदके का सवाब देता है, हर अच्छी बात बताने पर अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो खूब पढ़ा करो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अभी रमज़ान आ रहा है तो इस्तग़फ़ार की कसरत करना, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगना। रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे बंदे जो तूने 11 महीने मेरी नाफरमानी की, मुझको नाराज़ किया, मुझसे दूर रहा, ऐ मेरे बंदे 1 माह आजा मेरे सामने झुक जा, मुझको मना ले, मैं तेरे 11 महीने के गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। इस्तग़फ़ार की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, अल्लाह को प्यारे लगोगे, अल्लाह को अच्छे लगोगे। खूब कसरत से हमारी बहनें भी खूब पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत, अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम, बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हाँ खूब पढ़ो, सय्यदुल इस्तग़फ़ार याद है, सय्यदुल इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया, अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये सय्यदुल इस्तग़फ़ार है, धीरे धीरे याद करते रहो। प्यारे आका फरमाते हैं मिशकात शरीफ तिर्मिज़ी में है, अगर कोई शख्स एक मरतबा सय्यदुल इस्तग़फ़ार पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आप इसको धीरे धीरे याद करते रहो, खूब कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते रहो, इस्तग़फ़ार खूब पढ़ते रहो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला करम का मामला करेगा। प्यारे आका ने फरमाया मन सलिम लहू रमज़ान सलिमत लहू सना, जिसका रमज़ान सलामती के साथ गुजरा उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजरेगा। जो रमज़ान में गुनाहों से बचता रहा अल्लाह उसके रमज़ान के अलावा भी उसे तमाम महीनों में गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में नमाजों की पाबंदी करता रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्यारे आका का इरशाद अल्लाह ताला उसको सारा महीना सारा साल उसको नमाजों की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाएगा। मन सलिम लहू रमज़ान सलिमत लहू सना, ये प्यारे आका का फरमान है। लिहाजा कसरत से इस्तग़फ़ार करो, कसरत से अल्लाह की इबादत करो, तिलावत में खूब अपने आप को लगाओ। जितने हमारे हाफिज भाई बैठे हैं मैं इनसे कहूँगा आपके लिए 5 पारे 10 पारे तो कोई मुश्किल नहीं है। आप चलते फिरते थोड़े तौर पर कुरान करीम की तिलावत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। आपसे कहूँगा आप कुरान करीम से मोहब्बत न कीजिए बल्कि इश्क कीजिए, इसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाइए। हाँ शाम के वक्त भी रब के कुरान की तिलावत कीजिए, सुबह के वक्त भी कुरान करीम की तिलावत कीजिए। हाँ अल्लाह को याद किया कीजिए ताकि सलात तरफ़ई नहार व ज़ुल्फ़न मिनल लैल इन्नल हसनात
युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। रब्बुल आलमीन का फरमान है तुम रब्बुल आलमीन को याद किया करो, रात के भी, सुबह के वक्त भी, शाम के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। जुबान में बोलने की ताकत अल्लाह ने दी, नाक में सूंघने की सलाहियत अल्लाह ने दी, आंखों में देखने की सलाहियत अल्लाह ने दी, दिमाग में सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी। कौन है रब्बुल आलमीन के सिवा? कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जिसने कायनात को बनाया हो। बाद लोग इनकार करते रब नहीं है, अरे रब है तभी तो आप है, तभी तो हम हैं। अगर रब न होता तो कायनात न होती। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वल फुल्की लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल-क़ुरज़ूनिल क़दीम ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये रब्बुल आलमीन की कुदरत में ही पुतला है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बताओ क्या इन आयतों से रब्बुल आलमीन की हिदायत नहीं झलक रही है? ये रब्बुल आलमीन उलमा जानते हैं, इनका तर्जमा अगर मैं करने लगूंगा घंटों हो जाएंगे। मैं पूरे तौर पर मुख्तसर करते हुए मैं आपसे अर्ज करूंगा, रमज़ान आने से पहले आप 3 काम करें। बस यही एक रवायत बयान करके फिर इंशाल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूंगा। फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो पूरे तौर पर मज़ीद बातें अर्ज की जाएगी। प्यारे तुम 3 काम करके आओ, जन्नत की चाबी मुझसे लो। मन कुन्न फ़ीही यसरल्लाह तुम महफ़हु व अदखिलहु जन्नतहु। सबसे पहला काम रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़। ये सबसे पहला काम प्यारे आका ने फरमाया, कमज़ोरों की मदद करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, मज़लूमों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। जितने ज़रूरतमंद हैं ख़ानदान में है मदद करो, बरादरी में है मदद करो, रिश्तेदारों में है मदद करो, घरों में है मदद करो, पड़ोस में है मदद करो, गाँव में है मदद करो, देहात में है मदद करो, शहरों में है मदद करो। रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, ज़रूरतमंदों की मदद करो। पहला काम, अगर आपकी इफ्तारी पर, आपके दस्तरखान पर 10 आइटम है, पड़ोस में झांक करके देखो, कहीं कोई बेवा तो नहीं, कहीं कोई यतीम तो नहीं, कहीं कोई तंगदस्त तो नहीं, गरीब तो नहीं। एक आइटम उसके यहाँ भी भेज दो, उसका भी रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश हो जाएगा। रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, कमज़ोरों, ज़रूरतमंदों, यतीमों, बेवाओं की मदद करो। मदारिस वालों का खास ख्याल रखा करो। इस मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु, ईद का दिन है, ईद एक वाक़या याद आ रहा है, सुना देता हूँ, शायद फिर भूल जाऊँ। ईद का दिन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। इस वाक़े को तारीख़ जुरजान में नकल फरमाया, इब्न हिशाम ने भी अपनी तारीख़ में इसको जगह दी। प्यारे आका ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा का वाक़या है। अभी मदीनतुल मुनव्वरा रब्बुल आलमीन ने दूसरी मरतबा हाज़िरी नसीब फरमाई। अभी जून के महीने में उन गलियों में गया जिन गलियों का ये वाक़या था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरब शेख से पूरे तौर पर पूछता मैंने कहा, अच्छा वो वाक़या जो उस यतीम बच्चे का था वो किस गली में पेश आया था? आप अलैहिस्सलाम ईदगाह किस गली से जाते थे? उसने बताया, हालांकि अब वहाँ पर महल्लात बन गए हैं, उस ज़माने में वहाँ पर चटियल मैदान था। बहरहाल में धीरे धीरे पहुँच गया, लेकिन एक गली बाकायदा अभी भी रखी गई है। उन गलियों से नबूवत की खुशबू आज भी आती है, जो उलमाए किराम और पूरे तौर पर महसूस किया करते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, क्या देखा? एक मैदान है, उस मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा मासूम सा चेहरे पर पूरे तौर पर धूल लगी हुई और हैरानगी उसके चेहरे से जाहिर हो रही है। आंखों में आंसू हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं,
اور کھڑا ہوا حسرت بھری نگاہوں سے ان امیروں کے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پیارے آقا اس معصوم بچے کے قریب گئے، جا کر کے کہا بیٹے بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، عید کی خوشی منا رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کھیل سکتا ہوں، مجھ کو تو یہ کھیلنے دیتے ہی نہیں ہیں، اپنے پاس نہیں آنے دیتے، اپنے سے دور ہٹا دیتے ہیں، تمہیں دور کیوں ہٹا دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ کیونکہ میں یتیم ہوں، میرے ابا نہیں ہیں، میری اماں نہیں ہیں، میرے پیروں میں چپل نہیں ہے، میرا باپ ہوتا مجھ کو بھی چپل خرید کے دیتا، میری ماں ہوتی میرے لیے بھی کپڑے بنا کے سل کے مجھ کو بھی کپڑے سی کے دیتی، میری ماں ہوتی مجھ کو بھی عید کے لیے تیار کرتی، مجھے تو کوئی تیار کرنے والا ہے ہی نہیں، میں تو یتیم مکہ، میں تو یتیم مدینہ ہوں۔ پیارے آقا نے اس کو جو گلے سے لگایا، کہا بیٹا یہ نہیں کہا کرتے تو بھی یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں۔ اچھا میرے بچے، کیا تو اس بات پر راضی ہے، کیا تو اس بات پر خوش ہو جائے گا کہ میں محمد الرسول اللہ تجھے اپنا بیٹا بنا لو اور ماں عائشہ تیری ماں بن جائے؟ پھر تو خوش ہو جائے گا یا نہیں؟ یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا، چلو چلو پھر میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ پیارے آقا اس بیٹے کو لے کر کے، اس بچے کو لے کر کے عیدگاہ نہیں گئے، سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے، آواز دی حمیرہ لبیک یا رسول اللہ۔ امی عائشہ کو پیارے آقا پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ کے معنی لال گڑیا۔ امی عائشہ چونکہ ٹھمکی تھی، بہت لمبی نہیں تھی، امی عائشہ اب تھوڑا موٹی ہو گئی، ایک دن لال جوڑا پہنے ہوئے تھے پیچھے، اور اتنے میں پیارے آقا تشریف لے آئے، کیا دیکھا کہ لال جوڑے میں کوئی کھڑا ہوا ہے، تو میرے آقا نے دیکھا عائشہ ہے تو پیار سے کہا یا حمیرہ، یا حمیرہ، اے میری لال گڑیا ذرا میرے قریب آ، ذرا میرے پاس آ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یہ مجھے لقب اتنا پسند آیا، مجھے بڑا بھا گیا، میں نے اپنے ابو بکر سے کہہ دیا ابا جان آج سے مجھے عائشہ میں کہنا۔ پیارے آقا نے جو پیار سے حمیرہ کہا ہے یہی کہنا، اس دن سے امی عائشہ کا لقب حمیرہ پڑ گیا۔ حمیرہ جی یا رسول اللہ، ہاں لبیک یا رسول اللہ۔ حمیرہ دیکھو یہ بچہ ہے، اس کی اماں نہیں ہے، اس کے باپ نہیں ہے، عید کا دن ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، عائشہ میں نے تو اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تم بھی اس کی ماں بن جاؤ نا۔ امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو میں نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اپنے قریب کیا۔ امی عائشہ نے جلدی اس بچے کو نہلایا، انس فرماتے پیارے آقا نے ایک یمنی چادر اور رکھی تھی، اس چادر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اس بچے کی تہبند کی طریقے سے باندھا، دوسرا اوپر سے اڑا دیا۔ امی عائشہ نے آنکھوں میں کاجل لگایا، امی عائشہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا، کنگھی کی۔ بچہ جب تیار ہو گیا چلنے لگا، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے آج تو پیدل نہیں چلے گا، مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، آج تیری سواری مجھ محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنے گے۔ پیارے آقا بیٹھ جاتے ہیں، اس بچے کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور مدینے کی گلیوں سے انہی گلیوں سے گزرتے ہیں جن میں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے وہ آقا مدنی کے کندھوں پر نئے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بچہ بیٹھا بولا اے میرے بھائیوں تم مجھے یتیم سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب میں غریب نہیں ہوں، دیکھو رسول پاک نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اما عائشہ میری ماں بن گئی ہے، دیکھو مجھے نہلایا امی عائشہ نے ہے، آنکھوں میں کاجل ڈالا امی عائشہ نے ہے، ہاں آنکھوں پر سر میں تیل ڈالا امی عائشہ نے ہے، مجھے کنگھی کی امی عائشہ نے ہے، کپڑے پہنائے امی عائشہ نے ہے۔ تاریخ جرجان میں ہے مدینے کے وہ بچے دہاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے، ہمیں بھی نبی اپنا بیٹا بناتے، ہمیں بھی امی عائشہ نہلاتی، ہمیں بھی امی عائشہ ہمارے بھی آنکھوں میں کاجل لگاتی، سر کے بالوں میں تیل لگاتی، میں بھی نبی کے کمرے پر سوار ہو کر عیدگاہ جاتا۔ پیارے آقا لے کر کے گئے، جب بچہ نیچے بیٹھنے لگا پیارے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آج تو مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ منبر پر قریب میں بیٹھے گا۔ منبر پہ اپنے قریب بٹھایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا اے لوگوں
अगर कोई अपनी खुशी के मौके पर यतीमों के सर पर शफकत से हाथ रखेगा, अपनी खुशी में यतीमों को शामिल करेगा, गरीबों को शामिल करेगा, यतीमों को शामिल करेगा, गरीबों को शामिल करेगा, ज़ईफों को शामिल करेगा, हाँ उस यतीम बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखेगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी नाम आमाल में लिख देगा। और फिर फरमाया है लोगों, यतीमों की किफालत करने वाला, यतीमों की मदद करने वाला, मेरे नबी ने ये मेरी तरफ देखा, ये उंगलियां अपनी तरफ इशारा करके बताया, जैसे दो उंगलियां ये पास पास हैं, ऐसे ही यतीमों की, गरीबों की, कमजोरों की, बेवाओं की मदद करने वाला जन्नत में मेरे करीब कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। यतीमों की मदद करो, रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़, कमज़ोरों की मदद करो। दूसरी बात प्यारे आका ने फरमाए, वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, अपने माँ बाप को तंग न करो, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात न करो, अपने माँ बाप के सामने पूरे तौर पर कोई गुस्ताखी के कलिमात न कहो। माँ अल्लाह की अजीम नेमत है, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, बाप वो सायादार दरख्त है, जब तक जिंदा रहता है अपनी औलाद पर आँच नहीं आने देता। माँ अल्लाह की वो अजीम नेमत है, जब तक माँ जिंदा रहती है बलाओं से लड़ जाती है और अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने दिया करती। अजीजों, अक्सर मेरे नौजवान बैठे हैं, मैं इनसे कहता हूँ, एक अपील करता हूँ, अपने माँ बाप की कदर कर लो। मेरे नहीं है, मैं महरूम हो चुका हूँ, न मेरे पास माँ है न मेरे पास बाप है। आपके ज़िंदा हैं, आप उनकी कदर करो, वरना मेरी तरीके से रोते फिरोगे फिर कुछ हासिल नहीं होगा। माँ, मैं अगर अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, जब तक मेरी माँ जिंदा रही मुझे किसी की दुआओं की ज़रूरत न पड़ी। जब भी कोई मसला पेश आता प्यारी माँ को कहता, माँ जी, अम्मा जी, प्यारी माँ, अम्मी जान, मेरा फला काम अटक गया है, आप रब्बुल आलमीन से दुआ फरमा दीजिए। मेरी माँ तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से कह दिया करती, अल्लाह माओं की दुआएं रद्द नहीं करता, अल्लाह मेरा वो काम बना दिया करता था। 4 साल हो गए, माँ मेरे पास नहीं है। जब सफ़र पे निकलता था, घर में होता, माँ से इजाज़त लेने के लिए जाता, और अगर मदरसे में होता फ़ोन करता, अम्मा जी, प्यारी माँ, फला जगह जा रहा हूँ, दुआ कर देना। माँ दुआओं के साथ रुखसत करती थी। अजीज़ों, 4 साल हो गए, दुआ देकर रुखसत करने वाली माँ अब हमारे दरमियान नहीं है। जब सफ़र से वापस जाता, अम्मा जी, आज घर आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, इंतज़ार मत करिएगा, हाँ सो जाइएगा, आऊँगा तब जगा दूंगा। बीवी तो सो जाती, बेटा सो जाता, एक बिटिया है मेरी अफीफा सल्लमा, वो भी सो जाती, बेटा अफान सो जाते, हमारी अहलिया मोहतरमा सो जाती, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें झाँक कर अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। 3 बज जाए, 4 बज जाए, जैसे ही दरवाजा बजाओ ऐसा लगता था माँ जागी हुई है। सीधा दरवाजे के करीब आती, लड़खड़ाते हुए कदमों से, 70+ एज हो गई, फिर भी लड़खड़ाते कदमों से उठ के आती, कुंडी खोलती, सीने से लगाती, सर पे यूं शक्कर से हाथ फेरती, यूं गालों को छूती। झुर्रियों वाले मेरी माँ के हाथ जब गालों पर पड़ते, ऐसा महसूस होता दुनिया जहान की हसीन फूलों वाली शहजादी ने अपने हाथों की पंखुड़ियों से मेरे गालों को टच कर दिया हो। हाँ, सीने से लगाती। मैं बहनों से माजरत के साथ कहता हूँ, जब सफर से जाओ तो बीवियों की नजरें तो जेब पर होती हैं, लेकिन माँ की नजरें बेटे के भूखे पेट पर हुआ करती हैं। माएँ चेहरा पढ़ लिया करती हैं, बेटे ने कितनी देर से खाना नहीं खाया, बेटा कितना थका है, माएँ चेहरा देखकर जान जाया करती हैं। मेरी माँ बूढ़ी थी, बावजूद बुढ़ापे के उसके कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। मेरी अलिया कहती, अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए अपने बेटे के लिए। माँ जी मैं बनाती हूँ ना। पर मैं नहीं, बेटा बहुत दूर से आया है, थक के आया है,
माँ के हाथों की चाय पिएगा थकन कम हो जाएगी। अल्लाह की जात की कसम, माँ के हाथों की बनी हुई चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की सफर की थकान दूर हो जाया करती थी। अब घर जाता हूँ, दरवाजा वही है, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने वाली माँ अब मुझे नजर नहीं आती। घर जाता हूँ, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन बैठकर इंतजार करने वाली माँ अब मुझे नजर नहीं आती। 12 जून सन 2022 मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं तो बाहर था, फौरन फोन गया, हाँ बड़े भाई का, अम्मा जी दुनिया से रुखसत हो गई। भागा गया, आधी रात के वक्त पहुंचा। वैसे माँ जागा करती थी, आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ इस्तकबाल में खड़ी हो जाया करती थी, आज माँ लेटी हुई है। मैं माँ की लाश के करीब खड़ा हूँ और जज्बाती हो गया, चंद कलिमात कहे आपसे भी कहता हूँ। मैं कहने लगा, माँ जी आपका बेटा आ गया है, सलमान आ गया है, थका हुआ है, हाल नहीं पूछेगी, बहुत भूख लगी है। अम्मा जी आज आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। हालांकि मैं भी जानता था मुझे बोला नहीं करते, लेकिन ये मेरे जज्बात थे जो हम निकल गए। मेरी बहनें मेरे करीब आई, मुझे बिठाने लगी, भैया जी आप बैठ जाइए, आप दूर से आए हुए हैं। वो मुझे दिलासा देने लगी, वो भी रो रही है। मैंने चंद कलिमात कहे, तो मैंने चंद अल्फाज कहे, मैंने कहा मेरी बहनों, आए मेरे घर वालों, मुझे झूठी तसल्ली न दो, मुझे खूब पता है मुझे पैदा करने वाली माँ मुझे छोड़कर दुनिया से जा चुकी है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे अब्दू कहने वाला बेटा तो मिलेगा, चाचा कहने वाला भतीजा तो मिलेगा, मामू कहने वाला भांजा तो मिलेगा, भैया कहने वाली बहनें तो मिलेगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिल पाएगी। हाँ 4 साल हो गए, हजरत जी कहने वाले बहुत मिले, मौलाना साहब कहने वाले बहुत मिले, मुफ्ती साहब कहने वाले बहुत मिले, अल्लामा साहब कहने वाले बहुत मिले, लेकिन बेटा कहने वाला कोई न मिला। 4 साल हो गए, ये काम तरस गए लफ्ज बेटा सुनने को। लोगों अपनी माँ की कदर करो। जिस माँ की दुआएं लेकर मैं सफर पे निकला करता था, उस माँ को कब्र में सुला के आया हूँ। जिस माँ के साथ, जिस माँ की पलकों पर, जिस माँ की दुआएं लेकर के सफर से निकला करता था, उस माँ को कल उस माँ का जनाजा पढ़ के आया हूँ। लोगों आपकी माँ जिंदा है, उसकी कदर करो। जिस दिन वो चली गई आप रोते फिरेंगे। मेरा भी दिल करता है काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं भी इमाम शाफई की तरह रात के 4 बजे माँ के हुजरे में जाता, माँ के तलवे दबाता। जब सुबह का वक्त होता, तहज्जुद के वक्त इमाम शाफई उठते, तहज्जुद की नमाज के बाद अपनी बूढ़ी माँ के हुजरे में जाते, अपने बूढ़ी माँ के यूं तलवे पकड़ते और यूं दबाना शुरू करते। माँ इमाम शाफई की माँ कहने लगी, शाफई बेटा तो इतना बड़ा आलिम है, वक्त का इमाम है, जमाने का अल्लामा है, वक्त का फहामा है, क्यों अपने इन हाथों से मेरे पैर दबाता है। शाफई रो करके कहने लगे, अम्मी जान नबी के हदीस मुझ तक पहुंची है, जन्नत माँ के कदमों तले है। अम्मी जान इस नेमत से महरूम न करें, इस नेमत से आप मुझे महरूम न करें। सवाने हयात में लिखा है माँ के पैर दबा रहा है शाफई। माँ सोने लग गई, माँ ऊँघने लग गई। इतने में जज्बाती हो गई शाफई, दबाते दबाते पैर अपने चेहरे को नीचे किया और अपने इन होठों से अपनी माँ के तलवों को चूम लिया। माँ जाग गई, भड़क गई, शाफई क्या करता है? मुझ गुनहगार बुढ़िया के तलवे मुबारक होठों से चूमता है। शाफई कहने लगे, अम्मी जान मुझे माफ फरमा दीजिएगा, जब मैंने आपके तलवे को चूमा मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया हो। सर्व तीर्थमय माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात्, सर्वतनेम पूज्य, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। माँ बड़ी सिसक रही है,
बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है, सोचता है ईश्वर खुश हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। तो मैं नहीं, सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्व देवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूज्य, अपने माता पिता की सेवा कर ले, कोई तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब्बे दुल जलाल का। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला सुना दिया तेरे रब ने, जज बन गया तेरा रब। किस बात के लिए? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है। वइम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो इनके सामने नरमी से बात करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, वकुल लहुमा कौलन करीमा, तो बहुत नरमी से बात करना। खबरदार बेटे सुन, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुझे अपनी माँ के सामने, बाप के सामने ऊंची आवाज से भी बोलने की इजाजत नहीं। और क्या फरमाया? बाप ने नौकर बनकर तुम्हारी सेवा की, माँ ने नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा की, इसकी खबरगिरी करो। यही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा, यही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, यही माँ है जिसने पूरे तौर पर बचपन में चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जहाँ गई आपको साथ लेकर के गई। इस माँ को कभी रुस्वा न करो। प्यारे आका ने फरमाया वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। और आखिरी बात फरमाई वहसान इलल ममलूक, अल्लाह की तमाम मखलूक पर एहसान का मामला करो, हत्ता कि जानवरों पर भी एहसान का मामला करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। हाँ, हर एक के साथ मोहब्बत के साथ रहो, किसी से नफरत न करो। रमजान आने से पहले अपने वालिदैन को राजी कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। हाँ, पड़ोसियों से नहीं बन रही, उनसे पूरे तौर पर उनको मना लो। अल्लाह के लिए किसी से हसद न करो। वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाह इखवाना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, किसी से हसद न रखो, किसी से जलन न रखो, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझो। अल्लाह ही जानता है कौन अच्छा है। तकब्बुर, अल्लाह को किसी चीज का पसंद नहीं, न इल्म का तकब्बुर, न हुस्न का तकब्बुर, न दौलत का तकब्बुर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वालन असीमा। हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद ये वादा करके उठो, इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी एक मुसलमान की जिंदगी होगी। तो इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज के बाद इंशाअल्लाह हम मुसलमान नजर आएंगे। माओ की खिदमत करेंगे, वालिद के साथ अच्छा मामला करेंगे, अपने वालिदैन को तंग नहीं करेंगे, बहनों के साथ अच्छा मामला करेंगे, बहनों की खबरगिरी करेंगे, बेटियों की अच्छी तरबियत करेंगे, उलमा से, हुफ़ाज़ से मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, सबके साथ मोहब्बत करेंगे, नफरतों को खत्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशाशत नहीं, थकन के भी बहुत ज्यादा एहसास हैं, अभी फिर सफर पे निकलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी हाजिरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। लैतक तहनु वल अयाम मरीदतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।